Today I'm going to talk about the components of attitude. So yesterday when I spoke about attitude, basically attitude forms your behavior. So when we talk about attitude, we talk about the ABC model of attitude. The ABC model stands for A stands for affective, B stands for behavioral, and C stands for cognitive. Let's understand how this ABC model of attitude is applicable to our day-to-day life. So there is an example which has been given over here. Through this demonstration, I would like to explain you the ABC model. So there is a supervisor who has not given the promotion to one co-worker, although he deserved it, but he gave the promotion to someone else. So through this particular example, I would like to explain you how the components of attitude can be explained and what is the implication of the cognitive component, affective component, and behavioral component. So there is an organization wherein one co-worker is saying that I dislike my supervisor. Why he dislike his supervisor? Because according to him, he has evaluated that his supervisor gave a promotion to a co-worker who deserved it less than he was, and then he just evaluated that his supervisor is unfair towards him, his supervisor is biased towards him. So such type of practices are also being seen in a corporate setup wherein some person is being promoted even though the person doesn't deserve. Without merit, sometimes someone is getting promoted, and at the same time the others, those who are not getting promoted, they feel such kind of emotions because they feel that although they deserved it but they could not get promoted because of the bosses or the immediate supervisors biased nature, and that is being affected in the behavior of the employee because the employee will make a decision that I will not stay with the organization, I should search for some other company. And that is the action which has been affected because of the feeling which he has developed, and the feeling has got developed because of the evaluation which he has made in his mind, and his evaluation has said that this supervisor is not good. So that is a negative attitude which he has developed towards the supervisor. So ABC model always works. Now there is an example of a student. Sometimes some student says that I feel proud about of my institution where I'm studying. So if that is the case, if the student is saying that I feel proud of my institution, it simply means that they might have evaluated the overall facilities, the overall infrastructure, the overall support being given to them, and the quality of the teachers with respect to other institutions. So these are the things which are there. Now, if you look at it, with this evaluation, their behavior will be very positive. So they would recommend others also to for just join and just be a part of this institution. So this is a sign of positive attitude. So in your entire life you will come across with such kind of things. You will have a positive attitude towards certain things, and at the same time you will have a negative attitude. So when we talk about the attitude formation, attitude has been formed because of the three things majorly. The first is feelings, then your evaluation, and your action. You get a kind of feeling, whether it is a positive or whether it is a negative. That feeling affects your evaluation about something or some object, some situation, some person, some organization, or some group, and based on that your behavior is being affected, and that behavior reflects your action. So this is how I have explained the concept of ABC model of attitude with this example. I gave you both the two examples, one of negative attitude and one of positive attitude. Now, attitudes are basically the evaluative statements or the judgments concerning some objects, people, or events. As I just explained, affective component is the emotional feeling or feeling segment of an attitude. Just now I have explained. When we talk about the behavioral component, it is an intention to behave in a certain way towards someone or something. Now, there are other things also like cognitive component. Cognitive component को अगर explain किया जाए, cognitive component is
द इनसाइड फीलिंग, जिसको बोलते हैं अनुभूति होना, किसी चीज की अनुभूति होना, आप कुछ फील करते हैं एकदम से, आप किसी के बारे में बिलीफ बना लेते हैं कि ये चीज ऐसी है, ये चीज सही है, ये चीज गलत है. सो दैट इज द ओपिनियन और बिलीफ सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड. सो देर आर थ्री सेगमेंट्स ऑफ एन एटीट्यूड: अफेक्टिव, that is the emotional or feeling segment; behavioral component, that is the intention to behave in a certain way towards someone or something; and then the cognitive component, which talks about the opinion or belief segment of an attitude. Is that point clear to everyone? The ABC model being Yes, clear sir. to everyone? Okay. So now I'm proceeding to the next slide. Now here with this example, I would try to explain you the ABC component of the attitude. The employees are waving, as you can see in the picture on your right hand side. The employees waving to the guest at Hong Kong Disneyland. They are committed to the company and its goal of giving visitors a magical and memorable experience through careful hiring and extensive training. Disney ensures that the employees identify with its priority of pleasing customers by serving them as a special guest. अगर आप कहीं पर जाते हैं और आपको एक स्पेशल गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है किसी होटल में, रेस्टोरेंट में या किसी जगह पे, तो आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है, और उसकी वजह से आपका बिहेवियर क्या बोलता है कि नेक्स्ट टाइम हमें इस जगह पे जरूर आना है. राइट. सो यहाँ पर आपकी एक फीलिंग डेवलप हो जाती है, फीलिंग आपको, यू यू फील वेरी गुड अबाउट इट, एंड देन इट अफेक्ट्स योर कॉग्निटिव कंपोनेंट. आपको एक ओपिनियन बिलीफ बनने लग जाता है, उसकी वजह से आपका बिहेवियर अफेक्ट होता है. बिहेवियर क्या है? आप बोलते हो कि नेक्स्ट टाइम भी यहाँ पर जरूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो ट्रीटमेंट मिला वैसा ट्रीटमेंट मुझे कहीं और जल्दी जल्दी देखने को नहीं मिलता. सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ द डिज्नीलैंड Hong Kong. There are n number of examples in India also, wherein the customers are treated on priority. Customers are being treated as king or queen, and they are being made to feel special on that particular occasion when they are visiting the company, or when they are visiting the outlet, or when they are interacting with the company through the website or through any customer care executive. Now let's move further. When we talk about attitude formation can be studied with respect to these points. The first and the important point is experience with the object. Now, attitude has been formed with respect to your experience with any object. It could be an individual, for example, if you have approached a person X in your organization where you are working, and the moment you have approached him, you have observed that the person X is not supportive, he is not so frank, he is reserved, and he is not taking keen initiative in helping you. You will get that feeling, and that feeling will create a behavior, and that behavior will be, next time you will try to avoid that person. Next time you would not like to go and meet that person, because you have a feeling, and that feeling has been constructed because of the attitude formation, and you have formed an attitude about him that he is not supportive, he is not cooperative, let's not go to him, rather than go to some other person. Then classical conditioning. When we talk about classical conditioning, every time there is a conditioning. There is an example in the book of animal behavior. There is a classical example which has been given. एक पैरेट है, पैरेट को केज में रखा जाता है, उसको केज में रखने के बाद उसको खाना दिया जाता है केज, और खाना देने के बाद केज का डोर बंद कर दिया जाता है. पैरेट की आदत पड़ जाती है. धीरे 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 एक दिन जो ओनर होता है वो केज का डोर ओपन रखता है और पैरेट को खाना देता है. इंस्टीड ऑफ फ्लाइंग, पैरेट जो होता है वो उस केज के अंदर रह के ही खाना खाने की कोशिश करता है. तो ये एक तरीके की क्लासिकल कंडीशनिंग होती है. दूसरा एग्जांपल, आपने कभी एलिफेंट को देखा होगा, जब वो बच्चा होता है, बेबी एलिफेंट्स, उस केस में उसके पैरों में एक रस्सी बांधी जाती है. धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, और वो जो रस्सी या जंजीर होती है वो बहुत छोटी होती है, लेकिन उसके दिमाग में एक इंप्रेशन होता है कि इसको मैं तोड़ नहीं पाऊंगा, और इसी वजह से वो जो पर्टिकुलर बॉन्डिंग है उसकी चेन के साथ में, वो ऐसी हो जाती है कि अगर उसको पैर में एक भी चेन बांध दी जाए तो उसको ऐसा लगता है कि वो छूट के कहीं नहीं जा सकता, बिकॉज उसके मन में ये एटीट्यूड फॉर्म हो गया है कि दिस चेन इज अनब्रेकेबल. सो ये क्लासिकल कंडीशनिंग है. नेक्स्ट इज ऑपरेंट कंडीशंस. ऑपरेंट कंडीशंस बेसिकली क्या होता है, लाइफ में आपके फेवरेबल और अनफेवरेबल दो तरीके के इंसिडेंसेस होते रहते हैं, और ये इंसिडेंसेस के ऊपर आपकी कंडीशनिंग होती है. कुछ लाइफ में फेवरेबल होता है तो आप उसके हिसाब से पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म कर लेते हैं. लाइफ में कुछ अनफेवरेबल होता है, लाइक फॉर एग्जांपल लूजिंग समवन वेरी स्पेशल, losing someone very close in your family, these are the unfavorable incidences. Failing in an examination, right?
breaking up with the boyfriend or girlfriends, right? Not being able to cope up with the family. These are the unfavorable incidences, and because of that, such kind of attitude can develop. ऐसे लोग बहुत रिजर्व हो जाते हैं, डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं, कई बार वो सुसाइडल थॉट्स डेवलप कर लेते हैं, क्यों? बिकॉज एटीट्यूड फॉर्मेशन होने के बाद उनका बिहेवियर वैसा होता चला जाता है, वो अपने आप को उतना ही रिजर्व 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 और रिजर्व करते चले जाते हैं। एक तरीके का एक इमेजिनेटिव दुनिया में लेके जाता हूं मैं आपको। अज्यूम करिए कि आप पानी में कूद गए, पानी बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है और आप उसके साथ बहते चले जा रहे हैं, बट कुछ टाइम के बाद आपने एक पत्थर को पकड़ लिया। क्या आप अब आगे आसानी से मूव कर पाएंगे? द आंसर विल बी नो, बिकॉज आपके साथ में वो पत्थर है। तो ये जो अनफेवरेबल इंसिडेंसेस होते हैं लाइफ में, वो एक पत्थर की तरह होते हैं, ये आपको आगे जाने से रोकते हैं, बिकॉज आपको वो जगह पे वो रोक देते हैं और उसके बाद फिर आगे का आप कुछ सोच नहीं पाते। कुछ लोग जो बहुत लकी होते हैं वो उन सब चीजों से ऊपर उठ के आगे का कुछ सोचते हैं। बाकी मेजोरिटी में अगर देखा जाए, इंडिया में एक सर्वे हुआ था, 48% of the people are being affected by the unfavorable incidences, be it work or be it at the personal life, और उसकी वजह से उनका एटीट्यूड फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट इज विकेरियस लर्निंग। विकेरियस लर्निंग आप देखेंगे, एटीट्यूड जो है वो कंसिस्टेंट लर्निंग होती है उसकी। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा एटीट्यूड एक बार फॉर्म हो गया, नाउ दिस विल रिमेन फॉर एवर टिल द टाइम आई एम अलाइव। इट विल कीप ऑन चेंजिंग, इट इज डायनेमिक इन नेचर एंड यू लर्न द एटीट्यूड, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कभी कोई बच्चा नहीं था, लेकिन जब कोई बच्चा आ जाता है, एक नया मेहमान आ जाता है, तो आप लर्न करते हैं कि कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उसके साथ बात करनी है। कई बार आप बच्चों के साथ बच्चा बन के बात करने की कोशिश करते हैं, भले ही आपकी कितनी भी एज हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, जेंडर, कास्ट, क्रीड, इनकम, आप बच्चों के साथ बच्चे जैसा बिहेव करने लग जाते हैं। तो ये क्या है? इट्स अ विकेरियस लर्निंग। देन फैमिली एंड पीयर ग्रुप्स, दे प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग और फॉर्मेशन ऑफ द इंटायर एटीट्यूड। फैमिली का क्या रोल होता है? अगर फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा है, फैमिली एक प्रॉपर सेटल्ड है, तो आपका एक एटीट्यूड वैसा ही रहेगा कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है। लेकिन अगर फैमिली में कुछ चीजें प्रॉब्लमेटिक है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसका इफेक्ट आपके एटीट्यूड पे पड़ता है। आप चीजों को जल्दी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, आप इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, बाहर की दुनिया से ज्यादा कनेक्ट नहीं रखते, आप अपनी ही दुनिया में, अपनी इमेजिनेटिव दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसे इमेजिन करने लग जाते हैं। सो फैमिली एंड पीयर ग्रुप्स का बहुत असर पड़ता है। कई बार पीयर ग्रुप्स ऐसे होते हैं, those which are supporting the employees, those which are supporting the colleagues or the teammates, बट कई बार ऐसे भी होते हैं कि वो आपको सार्कास्टिक वे में आपको कुछ बोलेंगे। तो ये सारी चीजें भी एटीट्यूड फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं। अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या हो रहा था कुछ टाइम पहले तक, आपको पता है, ब्लैक ब्लैक लाइव्स एंड व्हाइट लाइव्स मैटर, आपको हैशटैग बीएलएम, आज जाके जब सब आप लोग ट्विटर पे चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा हैशटैग बीएलएम क्या है। Hashtag BLM is Black Lives Matter. Because of the ethnicity and that racial background, the people were subjected to such kind of discrimination at the workplace. So उसके बाद उनका एक attitude form हो गया कि that we are not being treated well, so they have decided to leave the company, right? So attitude formation हो जाता है। अगर फैमिली और पीयर ग्रुप सपोर्टिव है तो फेवरेबल होता है, नॉन सपोर्टिव है तो अनफेवरेबल होता है। देन नेबरहुड, आपके सोसाइटी में नेबरहुड का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगर नेबरहुड अगर अच्छा है, सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव है, तो आपका उसी तरीके से थिंकिंग और थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। अदरवाइज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियर, ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। आप जैसा फील करोगे, जैसा आप देखोगे, उसी हिसाब से आप बनने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट, इकोनॉमिक स्टेटस। यस, इकोनॉमिक स्टेटस की अगर बात की जाए, तो आज आप अगर देखेंगे किसी को भी, एक रिच फैमिली है और एक पुअर फैमिली का एक एग्जांपल लेता हूं। अगर आप एक रिच फैमिली में लोगों को देखेंगे, सो दे हैव अ वेरी सोफिस्टिकेटेड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डाइट कॉन्शियस रहेंगे, हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे, बहुत सारी चीजें देख के खाएंगे पिएंगे, हाइजीन फैक्टर रहेगा वो, क्योंकि उनके एटीट्यूड में आ गया है। वहीं अगर आप एक पुअर फैमिली को देखेंगे विच इज नॉट एबल टू just get their livelihood properly, they're not earning well, they are not getting food on time, तो उनको जो भी मिलेगा उसके लिए वो हाइजीन और ये सारी चीजें नहीं देखेंगे, बिकॉज उनका एटीट्यूड फॉर्म हो गया कि जो मिल रहा है उसको खा लो, जो मिल रहा है उसको ले लो, वो ये नहीं देखते, राइट? सो ये सारी चीजें जो है एटीट्यूड फॉर्मेशन में हेल्प करती है। देन मास कम्युनिकेशन, आप लोगों के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं या लोग जब मास आपके साथ कम्युनिकेट करता है, उस टाइम पे भी एटीट्यूड फॉर्म होता है। जैसे आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं, उस टाइम पे आपका एक अलग एटीट्यूड होगा, राइट? अगर आप एक लोकल लेवल पे एक लीडर बन जाते हैं, पॉलिटिशियन, लीडर, कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी, तो उस टाइम पे आपका एक अलग तरीके का एटीट्यूड फॉर्म होगा। आप उस आपकी पर्सनालिटी में, आपके बिहेवियर में वो चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। सो ये सारी चीजें जो हैं ये एटीट्यूड फॉर्मेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती हैं। इज दैट पॉइंट बीन क्लियर टू एवरीवन?
ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? हेलो हेलो Yes, sir. Sir, can you again explain mass communication? Mass communication is nothing but it is the way you communicate with the masses or the masses communicate with you. For example, if you become Amitabh Bachchan like celebrity today, so while you are communicating or while you are tweeting anything on Twitter, while you are posting anything on Instagram, you will have this thing in your mind that people are watching you, people are following you. Based on that, your things will be there. If you become Virat Kohli, if you become Anushka Sharma, your behavior will be entirely different. Your attitude will be entirely different because you will not be a simple person for others. Whatever you do will be followed by others. So people are going to follow you, and for that purpose, you will be over conscious. Is that point clear? Yes, sir. Thank Okay. you. Okay, fine. Now let us understand the benefits of positive attitude. Positive attitude plays very good role in your life, not only in your personal life but also in your professional life. When we look at it, the first and the foremost benefit of positive attitude in the workplace is it increases the productivity. If a worker feels positive because of his attitude, he will probably contribute more. When he contribute more, the productivity will bound to increase. Foster the teamwork. Foster the teamwork means positive attitude people will believe in teamwork rather than working in silos and watertight compartments. Solving problem. A person who is having the positive attitude will always offer his support and help to others, those who are needing that. So it means people having positive attitude help others in solving the problems in a team, individually or in a group. They are the people who become a role model to others even though they are facing lot of challenges in their own life, but they become role model to others. Next is makes for congenial atmosphere. It means they are the people those who are responsible for creating a friendly atmosphere at the workplace. When you are feeling positive, you will tend to create a very friendly atmosphere. But if when you are very depressed, very upset because of something which has happened, that attitude formation will lead to a negative behavior, and that will be affecting your entire day-to-day work. And then you will not just believe in mingling with the people, you will try to avoid the people, and as such you will not believe in congenial atmosphere. So it is only possible only when if you have a positive attitude at the workplace. Now, positive attitude, it depends upon three things, which I have already explained: affective, behavior, and cognitive. So all these three things will always remain with you, and it will create and it will shape your attitude. Now, breeds loyalty. When you are having positive attitude towards anything, be it a brand, be it a product, be it a person, you tend to develop a loyalty of the public. Like for example, anyone who talks always positive, like Gandhi ji, Abraham Lincoln, right? Uh, our current Prime Minister, President of India, the Chief Minister of Maharashtra. When you talk about something, people tend to follow you, and those people, those who catch that positivity in you, becomes your loyal people. They always love to listen, they always love to follow your comments, they always love to follow whatever you are doing. So that is how the positive attitude does in our life. Next is increases the profit. As the productivity increases, the profits are also going to increase because the positive attitude people will encourage everyone. They will believe in teamwork, and with that teamwork effort, the goals can be attained easily. Next is foster better relationship with the employees, employers, and customers. You will develop better relationship with the stakeholders. That is how the advantage of positive attitude is. It also reduces the stress and then makes for a pleasing personality. If you have a positive attitude, people will say that कि देखो कितना अच्छी personality, हमेशा हंसता रहता है, कोई भी काम challenges कुछ भी आते हैं तो उसको positively लेता है. So these are the examples. Is that point clear to everyone? Chetna, Komal, Devendra? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So let us now understand the summary of whatever we have covered until now with respect to attitude. Attitude is it is an important variable in individual behavior. Attitude refers to our beliefs, feelings, and behavioral tendencies of people towards objects, people, and ideas. एटीट्यूड हमारे बिलीफ को, फीलिंग को और बिहेवियरल टेंडेंसीज को रिफ्लेक्ट करता है टूवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट,
or people or ideas, right? ABC model मैंने आपको explain किया है. This seeks to better explain the nature of attitude. A stands for affective, B stands for behavior, action tendencies, and C stands for cognition, which means belief and opinion. Now, attitudes are formed by direct experience with the object. Classical conditioning, operant conditioning, vicarious learning, family and peer groups, neighborhood and mass communication, ये मैंने cover किया है. Positive attitude ensures such benefits to the organization as increased productivity, better quality, reduce the stress, improved loyalty, and like all the similar things. Then attitude serves the important functions such as adjustments. अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप एडजस्ट करके लेते हो. एक बहू अगर घर में आती है, नई नवेली बहू, और उसके सास ससुर अगर थोड़े चिड़चिड़े हैं, थोड़ा अगर बात बात पे अगर टोका टाकी करते हैं, और अगर बहू का एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो शी विल लर्न हाउ टू एडजस्ट विद देम. अगर एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा देन यू नो व्हाट वुड बी द सीन. After some time there will be a world war kind of situation. Jokes apart, these kind of things happens in organization also. When the attitude of the people is positive, they take any kind of changes, any kind of modifications, any kind of revisions in the policies positively. When the attitude is not positive, they take everything negatively. So attitude serves important functions such as adjustment, ego defensive. कई लोग ईगो में आके बोलते हैं मैं तो उससे जिंदगी भर बात नहीं करूंगा. When I was flying back to Pune from my hometown recently, I was talking to my cab driver. He just told me that he had a love marriage, and after that love marriage, his father-in-law had stopped talking to his daughter. His father-in-law was in defense, and after retirement, his father-in-law was having aspirations and great ambition of marrying his daughter to some reputed family. But because he was not so much established, his father-in-law was not happy with this marriage, and ultimately he stopped talking. And as you can understand through this example, people become so egoistic that they try to defend their actions and their decisions in their life. And that is just because they have sometimes the negative attitude towards any object or a person. So it is not like that you cannot avoid 100% being negative, but yes, to a certain extent you can avoid it. 70%, 80%, whatever you can do, that will really help you to adjust with the surroundings. And when you learn to adjust with the surroundings, you will cope up with them better. Then value expressive. Value expressive means attitude helps you to express yourself in a better way, right? Then knowledgeable people, you have more knowledge because when you have positive attitude, you tend to grasp the things. When you have negative attitude, rather than listening, you believe in hearing. तू बोल रहा है उसके बाद मेरे को बोलना है. That is the example of negative attitude. Now attitudes of individuals and groups needs to be changed, because if you don't change the attitude, probably you will not be able to survive with the changing environment, with the changing workplace. If the change is difficult because of various barriers, you have to understand that you need to adjust. Change क्यों difficult होता है? Because of the barriers. Which are the barriers? Escalation of commitment. आपने किसी को कमिट कर दिया, अब आपको वो काम करके ही दिखाना है. जैसे फॉर एग्जांपल, आपके घर में सब लोगों ने बोला कि छुट्टी ले लो और छुट्टी लेके हम लोग कहीं पिकनिक पे जाते हैं, बट आपने अपने बॉस को कमिट किया है कि मैं ये काम वीकेंड तक खत्म करके आपको दूंगा. तो ये क्या होता है, आपका कमिटमेंट आगे उसकी वजह से आप बोलते हैं कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. तो फैमिली एक तरफ हो जाएगी और उसके बाद आप एक तरफ हो जाएंगे. तो ये एक रीजन है. देन कॉग्निटिव डिसोनेंस. कॉग्निटिव डिसोनेंस तब होता है जब दो पर्सन्स की फीलिंग आपस में कभी मैच नहीं करती, उनके एटीट्यूड मैच नहीं करते. एक बोलेगा कि ये सुबह है तो दूसरा बोलेगा कि ये शाम है. एक बोलेगा ये आसमान है तो दूसरा बोलेगा कि ये जमीन है. समुद्र के दो किनारे, द टू साइड्स ऑफ द सी विच नेवर मीट्स, उसी तरीके से ये जैसे रेल की दो पटरियां साथ में चलती हैं बट एक साथ नहीं होती, उसी तरीके से कॉग्निटिव डिसोनेंस है. जब लोगों में आपस में नहीं बनती उसके बाद वो फिर नहीं बनती है, राइट. देन इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन. एक सबसे बड़ा बैरियर है एटीट्यूड का, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन. कई लोगों को मिसगाइड कर दिया जाता है. जैसे अभी रिसेंटली, आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मैटर, बट आपको पता है कि कभी भी कई बार गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती, कोई डिसीजन लेती कि हमें ये अच्छा काम करना है, तो उसके बाद क्या होता है, र्यूमर्स फैलाने वाले लोग आगे आ जाते हैं और वो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे र्यूमर्स फैला देते हैं. उसकी वजह से कुछ लोग जो होते हैं वो उसमें उसके हिसाब से एक्ट करने लग जाते हैं.
जैसे रिसेंटली राफेल की डील हुई थी, उस टाइम पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रोपोगेंडा क्रिएट किया था कि दिस राफेल डील इज हैविंग लॉट ऑफ करप्शन। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर स्टेटमेंट दिया कि इसमें कोई करप्शन नहीं हुआ, और बाद में जिसने ये स्टेटमेंट दिया था कि इसमें करप्शन हुआ है उसको ओपन अपॉलॉजी देनी पड़ी। तो ये क्या होता है, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन उसने तो फैला दी, ये र्यूमर फैला दिया, और उसके बाद क्या होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट, there are hints available to change attitudes both at individual level and group level। जब आप चेंज करना चाहते हैं एटीट्यूड को तो वो आसानी से चेंज हो सकता है, हिंट्स भी अवेलेबल होती हैं, ऐसा नहीं कि कोई हिंट आपको नहीं मिलेगी कि कैसे चेंज करना है। आपको टाइम टू टाइम लोग बोलते हैं कि यार तेरे बिहेवियर में ये चीज़ है, इसको चेंज कर ले, तो बहुत रूड हो जाता है, तो लोगों से ऐसे बात करता है, थोड़ा पोलाइटली बात कर। ये हो सकता है कि आपके दिमाग में आपकी अथॉरिटी, आपका पावर, आपका जो डेजिग्नेशन है, उसकी वजह से आप जब लोगों से बिहेव करेंगे तो उस टाइम पे आपको लगेगा कि यार मुझे ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, बट अल्टीमेटली लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनके लिए पॉजिटिव रहें, राइट। सो जॉब सेटिस्फैक्शन इज वन टाइप ऑफ एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप कैसे भी रहेंगे आपको एक अच्छा फील होगा, राइट। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द सोल्जर्स विच आर जस्ट गिविंग देयर ड्यूटी एंड सर्विंग द नेशन डे एंड नाइट इन द बॉर्डर्स। उनको कौन सी फैसिलिटी मिल रही है, उनको खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा, अपनी जान पूरी वो निछावर कर देते हैं देश के लिए, दे सेक्रीफाइस देयर इंटायर लाइफ, दे शेड देयर ब्लड at the cost of saving the nation, but they are highly satisfied people। उनको जॉब सेटिस्फेक्शन क्यों है? बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एटीट्यूड। उनको शुरुआत से सिखाया जाता है ट्राई टू लिव इन द स्कैरसिटी, लर्न टू अडेप्ट विद दोज चेंजेस। तो वो सारी चीजों की वजह से उनमें एक अच्छी बॉन्डिंग होती है। when I was conducting the training for Indian Navy, I just got to know that there were incidences where the soldiers had lost their life during the voyage, during the sailing only. But since the particular ship was not at the shore, not there at the shore, so the body was lying in the ship only. It was getting perished, and the people were having no option rather than to just accommodate and adjust with that body and have their food and do the daily chorus. It's really very difficult, but they have highest job satisfaction, right? So job satisfaction is the cause of several benefits and consequence of many factors, as I have just explained. It is useful to measure job satisfaction, and OB experts have suggested several techniques of measuring. This is not in your syllabus, so I'm not covering that part, how to measure the job satisfaction at present, because it is already in your HR syllabus. Now, another work-related attitude is organizational commitment. Organizational commitment refers to the strength of the employee's involvement in the organization and identification within it. आपने कोई टास्क, अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोजेक्ट आता है, आज की तारीख में हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, एक प्रोजेक्ट आया, उसमें आपको लीड दे दिया गया या आप उसमें टीम मेंबर हो गए, और वो प्रोजेक्ट का एक शेड्यूल होता है कि इतने टाइम फ्रेम में उसको कंप्लीट करना है, तो आपका एक कमिटमेंट हो जाता है और आप उसमें अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेते हो कि आप अपने आप को उसका एक पार्ट समझने लग जाते हो। So that is how the organizational commitment is. If your attitude is positive, you will feel involved in it. If your attitude is negative, you will never feel involved into it, right? Then organizational commitment, it also varies across the countries. The Asian countries score high on this variable because Asian countries में लोग छुट्टी के लिए इतना ज्यादा उसके पीछे नहीं भागते। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, आप मंडे टू फ्राइडे यू कैन गेट देम टू वर्क, दे विल वर्क वेरी हार्ड, बट सैटरडे संडे अगर आप एक यूके के पर्सन को बोलेंगे सैटरडे संडे काम पे आना है, वो कभी नहीं आएगा। वो बोलेगा मुझे गोल्फ खेलना है, मुझे पब में जाना है, मुझे अपनी लाइफ जीनी है। उनके लिए उनकी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए उन्होंने 2 दिन रिजर्व रखे हैं, सैटरडे संडे, वो उसको छोड़ नहीं सकते। तो यहां पर अगर देखा जाए ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट की बात, तो इंडियंस को पूरे वर्ल्ड वाइड क्यों हायर किया जाता है? बिकॉज वी टेंड टू वर्क इवन ड्यूरिंग द टाइम व्हेन अदर्स आर एंजॉयिंग द फेस्टिवल्स। आईटी कंपनी में काम करने वाले मेरे कई सारे फ्रेंड्स होंगे जो ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, उनको ये चीजें पता है कि जब फेस्टिवल होते हैं तो आप लोग, फेस्टिवल का कॉम्प ऑफ मिलता है आप लोगों को, कई बार आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, लेकिन आप ओवर टाइम काम करते हैं। वही जिस कंट्री का ये फेस्टिवल है, फॉर एग्जांपल क्रिसमस के टाइम पे इंडियंस काम कर रहे हैं, आपको बैक ऑफिस सपोर्ट दे रहे हैं, कस्टमर केयर सपोर्ट दे रहे हैं किसी और कंट्री के लिए, किसी और कंट्री के बैंक के लिए, और वो कंट्री के लोग आराम से अपनी फेस्टिवल या वैकेशन को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट का स्कोर जो है वो एशियन कंट्रीज में काफी हाई है, बिकॉज वी आर वर्कहॉलिक पीपल। नेक्स्ट इज वैल्यूज। अगर वैल्यूज की बात की जाए तो वैल्यू क्या होता है? दीज रिप्रेजेंट द स्टेबल लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आपका एक वैल्यू है कि आप सैटरडे को, वैल्यू और बिलीफ आपने रखा है कि सैटरडे को, ट्यूसडे को आपको नॉनवेज नहीं खाना है। दोज हु आर हिंदूज कैन अंडरस्टैंड दैट।
राइट। नॉन वेजिटेरियन हमारे यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, एक वो होते हैं जो जिनको कभी भी मिल जाए खाएंगे, और एक नॉन वेजिटेरियन वो होते हैं जो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे छोड़ के किसी भी दिन खाते हैं, मतलब बचे हुए 4 दिन, राइट। सो ये वैल्यू सिस्टम जो डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द बिलीव्स, लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स ऑफ द फैमिली। अभी आपके घर में अभी जब गणपति की पूजा होती है तो उस टाइम पे गौरी को बुलाया जाता है, गौरी की पूजा होती है, उसमें घर की जो एंसेस्ट्रल जो गुड़िया है वो चली आ रही है, उनकी पूजा की जाती है, साड़ी पहनाया जाता है, उनके आगे नैवेद्य रखे जाते हैं। क्या है? वैल्यूज एंड बिलीव्स हैं, और उसके हिसाब से आप उनको समझने लग जाते हैं। और फिर जब उनकी विदाई होती है तो हर किसी के आंखों से ऐसे आंसू आते हैं जैसे कि रियल में किसी बहू की विदाई कर रहे हैं, राइट। तो ये वैल्यूज एंड बिलीव्स हैं जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अंदर तक आपके दिमाग में घुस चुके हैं, उसने आपकी माइंड स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है, right? So there are personal as well as organizational values. पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज दोनों अलग अलग लेवल पे होती हैं। आपकी खुद की कोई वैल्यू होगी और ऑर्गेनाइजेशन की खुद की एक वैल्यू होगी, राइट। एन इंडिविजुअल एंटर्स द ऑर्गेनाइजेशन विद हिज और हर वैल्यूज विच ऑफन क्लैश विद द ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज। कई बार इंडिविजुअल हाईली एम्बिशियस होते हैं, उनको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा सैलरी अर्न करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। ऑर्गेनाइजेशन एट द सेम टाइम इज नॉट लुकिंग एट प्रॉफिट बट इट इज लुकिंग एट द कस्टमर डिलाइट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और सर्विंग द नेशन। फॉर एग्जाम्पल टाटा। अब कोई हाईली एम्बिशियस पर्सन वहां साइरस मिस्त्री जैसा जाएगा और बाद में कंपनीज को बंद करने लग जाएगा तो टाटा ग्रुप को वो बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने उसको निकाल दिया। इन्फोसिस का विशाल सिक्का का केस, अगेन द सेम एग्जांपल, राइट। सो ऑल दीज एग्जांपल्स आर देयर इन पास्ट, you can revisit those examples to understand this concept better. Now sometimes attitude is very important, because if you don't study the attitude of the person you will not be able to understand how to motivate the person, how to get that person in alignment with the goal of the organization, how to train the person. Then all these small things you will not be able to deliver as a manager, as a leader in the organization. So attitude is an important concept in the study of OB as it has influence on the perception, satisfaction and commitment. तीन चीजों पे attitude का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। सबसे पहला परसेप्शन, आपकी सोच कैसी है, दूसरा सेटिस्फैक्शन, आप कैसे सेटिस्फाइड है कि नहीं है, और तीसरा कमिटमेंट, कमिटमेंट आपका लेवल क्या है, आप कितना ज्यादा कमिटेड है किसी चीज को लेके, राइट। तो यहाँ पर एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, तभी आपको चीजें पॉजिटिव दिखेंगी। अदरवाइज आप किसी के अंदर केवल निगेटिव ही देखेंगे, आप उसको इवेल्युएट करेंगे और हमेशा उसको कंपेयर करने लग जाएंगे, राइट। सो वैल्यू इन्फ्लुएंसेस द एटीट्यूड, मोटिवेशन एंड परसेप्शन। आपकी जो वैल्यूज बनी हुई है ना, उसकी वजह से आपका एटीट्यूड, मोटिवेशन और परसेप्शन इन्फ्लुएंस होता है। इज दैट पॉइंट बीन क्लियर टू एवरीवन? Yes. sir. Okay, fine. Now let's talk about the attitude and behavior. So people seek consistency among their attitude. Yes, sir. Okay, fine. So when we look at our attitude, so people are seeking consistency among their attitude and between their attitudes and behavior. आपका जो behavior होगा वो attitude से influence होगा, जो मैंने अभी example दिया वो तो समझ गए आप। Any form of inconsistency is uncomfortable and individual will therefore attempt to reduce it. जैसे आपको किसी ने बोला कि सुबह तुमको 4 बजे उठ के जाना है और 4 बजे उठ के तुमको बस पकड़नी है, तो आपके दिमाग में आएगा कि अरे यार 4 बजे उठना है, अनकंफर्टेबल हो जाएंगे आप, आपका एटीट्यूड इमीडिएट चेंज हो जाएगा, आपके मन में बहुत सारी चीजें चलने लगेंगी, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, राइट। ऑल दीज थिंग्स विल कम इनटू पिक्चर व्हेन समथिंग अनफेवरेबल और अनकंफर्टेबल हैपेंस विद यू। आपको बोला गया कि आप अभी यहाँ पुणे की ब्रांच में काम कर रहे हैं, अगले महीने हम आपको रिलोकेट कर रहे हैं, आपको बैंगलोर में जाना है, तो उसकी वजह से आपको जिस कंपनी में आपका लगाव था, इतना ज्यादा अटैचमेंट था, अगर आप बहुत ज़्यादा फैमिली सिकनेस है, आपको आप फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो आप कहोगे कि कंपनी को टाटा करना ही ठीक है क्योंकि कंपनी मुझे बैंगलोर भेज देगी, मैं फैमिली के साथ नहीं रह पाऊंगा। सो ये सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि पीपल उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। सो पीपल सीक अ स्टेबल स्टेट विच इज़ अ मिनिमम ऑफ डिसोनेंस। ऐसी सिचुएशन में आने की कोशिश करते हैं लोग जहां पर कम से कम डिसोनेंस हो, जहां पे कम से कम डिस्टर्बेंस हो। When there is a dissonance, people will alter either the attitudes or the behavior, or they will develop a rationalization for the discrepancy. क्या होता है कि जब कभी कुछ निगेटिव होता है लाइफ में, तो लोग क्या करते हैं उसके हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और रेशनलाइज करते हैं अपने दिमाग को कि हाँ ये ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ दिस रीजन, राइट। Recent research found, for instance, that the attitude of the employees
who had emotionally challenging work events improved after they talked about their experience with the co-workers. ऐसा देखा गया रिसर्च में कि जो co-workers के साथ में अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं उससे उनका एटीट्यूड जो है वो काफी इंप्रूव हुआ वर्क प्लेस को लेके, उनको बॉन्डिंग एक फील हुई और वो अटैचमेंट फील हुआ जिसकी वजह से उन्होंने आगे काम किया. Now, social sharing help these workers adjust their attitudes to behavioral expectations. Social sharing की बहुत जरूरत है. आप अगर सोशली आपस में टिफिन शेयर करते हैं कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में, आप बर्थडेज में सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे की सुख दुख में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है. ना कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? कॉग्निटिव डिसोनेंस एटीट्यूड के रेफरेंस में आता है. ये एक टर्म है जिसको आपको हमेशा याद रखना है. कॉग्निटिव डिसोनेंस इज एनी इनकॉम्पेटिबिलिटी बिटवीन टू और मोर एटीट्यूड्स और बिटवीन बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स. दो तीन लोग हैं अलग अलग बात कर रहे हैं, कोई बोलेगा कि चलो आज यहाँ घूमने जाते हैं, दूसरा बोलेगा नहीं मंदिर जाते हैं, तीसरा बोलेगा कि चलो मूवी देखते हैं. राइट, आपके बीच में बहस छिड़ी हुई है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस. वर्क प्लेस पे आपको ये चीजें बहुत देखने को मिलेंगी. समटाइम्स पीपल गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस. सो कॉग्निटिव डिसोनेंस वहां पर भी होता है. कस्टमर के बीच में और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में भी कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है कई बार, बिकॉज कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन समटाइम्स डजंट मैच विद द service providers offerings. That time there is a dissonance. When there is a dissonance, customer get highly dissatisfied, then the customer try to switch or probably give a very negative feedback, a negative word of mouth publicity to other people. So ये cognitive dissonance होता है. ये कहां से आता है? Negative attitude की वजह से. वो कैसे develop होता है? Because आपका किसी से wavelength match नहीं कर रहा उसकी वजह से. So the attitude behavior relationship is also likely to be much stronger if attitude refers to something with which we have direct personal experience. देखिए, एटीट्यूड और बिहेवियर का रिलेशनशिप समझना है तो आप ये समझ लीजिए कि जब किसी भी पर्सनल एक्सपीरियंस का हमसे डायरेक्ट रिलेशन होगा तो हमारा वैसा ही एटीट्यूड फॉर्म हो जाता है. अभी कुछ दिन पहले की बात थी, मैं रात में अपने घर से निकला था, मुझे कुछ सामान लेना था नियर बाय किराना स्टोर से. जब मैं वापस आ रहा था तो देयर वेर स्ट्रे डॉग्स, और वो स्ट्रे डॉग्स दे हैड स्टार्टेड बार्किंग. सो उनकी बार्किंग की वजह से मुझे एक अंदर से एक फियर हो गया कि ये इतने सारे स्ट्रे डॉग्स हैं, एक दो होते तो भगाना आसान था, बट वो पूरी फौज थी उनकी. तो मैंने क्या किया, मेरा एक एटीट्यूड फॉर्म हो गया, मेरा बिहेवियर वैसा हो गया कि अब अगर मुझे कहीं जाना है, रात में निकलना है, सो आई डोंट गो बाई बाइक, आई गो बाई विद माई कार, क्योंकि मुझे मालूम है कार में एटलीस्ट सेफ तो है, या अदरवाइज अवॉइड ही करो. तो ये तरीके जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे आपका बिहेवियर अफेक्ट हो गया. राइट, इज दैट पॉइंट बीन क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट्स? Yes. ओके कोमल, एनीवन एल्स? चेतना, Yes. देवेंद्र, स्नेहा, परिणीता? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Who is PR? I have to mark your attendance. If you won't tell me your name, you will be marked as absent. Because based on your names, I am marking your attendance on day-to-day basis. Who is PR? Who is PR? I can see a name PR. Please tell me your name, otherwise I would be Priyanka. Okay, fine. So that's an example which I have given over here. ये मैं आपके लिए एग्जाम्पल ढूंढ के लेके आया हूँ. वेस्टिन होटल strives for consistency between employee attitudes and behavior through a global wellness program to help the employees improve their health. Shown here is Westin's executive chief. He is the Westin executive chef, Mr. Frank Tuzak, whose cooking demonstration give employees direct experience with healthy ingredients and cooking techniques. ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर वेस्टिन होटल में? वेस्टिन होटल में ये जो वेस्टिन का जो शेफ है, जो मेन एग्जीक्यूटिव शेफ है फ्रैंक टोजैक, वो क्या कर रहा है, वो कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है एम्प्लॉयज को, जिससे कि उनको एक एक्सपीरियंस हो जाए कि अगर आपको हेल्दी खाना खाना है तो हेल्दी इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं और कुकिंग टेक्निक्स क्या होती हैं. इसकी वजह से वो लोगों में आपस में अच्छी बॉन्डिंग भी डेवलप कर रहा है, बिकॉज जो लोग आएंगे लाइन में लगेंगे वो आपस में एक दूसरे से बात भी करेंगे. एट द सेम टाइम उनकी कंपनी से भी पॉजिटिव बॉन्डिंग होगी, क्योंकि उनको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से कंपनी उनके लिए काम कर रही है. दूसरा एग्जाम्पल है, यूएस में एक स्टेशनरी की कंपनी है, दैट इज कॉल्ड स्टेपल्स. लंच ब्रेक के टाइम पे वो लोगों को हेल्दी और फिट रखने के लिए उनसे एक्सरसाइज करवाते हैं. कई बार उनसे ट्रक पुलिंग करवाई जाती है ग्रुप में. तो इसकी वजह से क्या है, मस्कुलर एक्सरसाइज है जिसमें आप अपनी बॉडी को यूज कर रहे हैं और पुश कर रहे हैं. इससे लोगों में एक अच्छी ट्यूनिंग होती है, अच्छी टीम डेवलप होती है. साइड बाय साइड लोगों को पता चलता है आपस में एक दूसरे के बारे में. राइट, सोल्जर्स क्या करते हैं जब उनकी ट्रेनिंग होती है एनडीए में, आप कभी जाके देखिए, जब वो
जब उनका प्रोसेस हो रहा होता है ट्रेनिंग का, उस टाइम पे उनको काफी टफ टास्क दिए जाते हैं, साथ में चलना है, अकेले आपको नहीं भागना है, टीम को ही जिताना है। तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें जिसकी वजह से आपका एक बिहेवियर पॉजिटिव हो जाता है। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay, Pallavi. So let us now move ahead. Emotions. What is emotion? Everyone knows about it. पूरी जिंदगी जब हमने होश संभाला तब से हम इमोशंस के चारों तरफ हैं। एक टाइम था जब आप पैदा हुए थे तो आप केवल रो रहे थे और पूरा घर हंस रहा था, राइट? और आज का टाइम है, आज आप काफी स्टेबल हो चुके हैं। तो ये जो इमोशंस हैं, ये कई सारे इमोशंस होते हैं। हमारी लाइफ हमेशा इमोशंस से घिरी हुई होती है। कुछ लोग होते हैं जो इमोशन के कंट्रोल में रहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, देर आर पीपल दोज हु कंट्रोल द इमोशंस and there are people those who are always under the control of the emotions. This is just like either the horse riding the horse, horse rider riding the horse, or the horse is riding the rider. What, घोड़ा घुड़सवार को दौड़ा रहा है या घुड़सवार घोड़े को दौड़ा रहा है? ये चीजें आपको मुझे बतानी है। कौन बताएगा? ये जो घुड़सवार होता है ये घोड़े को दौड़ाता है कि जो घोड़ा है वो घुड़सवार को दौड़ाता है? कौन किसको दौड़ाता है? Because it has got a direct linkage with the emotions. आप मॉर्निंग वॉक पे सुबह जाते हैं अपने पेट्स को लेके, पेट्स बाहर जाके पू करते हैं, जो कुछ भी है, तो आप मुझे ये बताइए कि आप अपने पेट्स को लेके जाते हैं कि पेट्स आपको लेकर जाते हैं? कौन मुझे इसको एक्सप्लेन करेगा? संकेत? हम पेट्स को लेके जाते हैं बाहर। आप पेट्स को लेके जाते हैं बाहर, ओके। कोमल, और कोई बताएगा मुझे? देखिए, कभी कभी पैर साथ लेके जाते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी होती है। यस पल्लवी, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। आप पेट्स को लेके जा रहे हैं, आपकी मजबूरी है। एक्चुअल में पेट आपको लेके जा रहा है, वो आपको दिमाग में एक फीलिंग डालता है कि मुझे लेके जाओ बाहर, और उसकी वजह से आप बाहर जा रहे हैं। तो एक्चुअल में आप पेट को बाहर लेके जा रहे हैं, ये आपकी एक फीलिंग है, बट एक्चुअल में वो करेक्ट नहीं है। करेक्ट ये है कि पेट आपको बाहर लेके जा रहा है, उसकी वजह से आप बाहर निकल रहे हैं, अदरवाइज आप बाहर नहीं निकलेंगे, राइट? सो इमोशंस कई बार क्या होते हैं, कई बार हमारे बिहेवियर को पूरा चेंज कर देते हैं। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इमोशंस लाइक फीलिंग एक्साइटेड, फीलिंग सैड, फीलिंग वेरी एंग्री, फीलिंग सिक, फीलिंग सरप्राइज्ड, हैप्पी, अनहैप्पी एंड बोर्ड। इस पूरे क्लास में अगर मैं देखूं तो शायद एंग्री को छोड़कर आपको सभी तरीके के इमोशंस वाले स्टूडेंट्स मिल सकते हैं, और हो सकता है कि कोई एंग्री भी हो, ये भी क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज ये जरूरी नहीं कि एंगर यहाँ पर इस क्लास में अटेंड करने की वजह से हो। एंगर मे बी बिकॉज ऑफ सम अदर थिंग्स। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इमोशंस आर। सो इमोशन इज अ न्यूरल इंपल्स दैट मूव्स एन ऑर्गेनिज्म टू एक्शन। किसी एक पर्सन को एक्शन में लेके आता है, राइट? आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो आप अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, कुछ लोग रो लेते हैं, कुछ लोग दोस्तों को बात करते हैं कि चल यार आज मिलते हैं, मैं बहुत ज्यादा आई एम फीलिंग वेरी डाउन, राइट? सो ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप एक्शन करते हैं। आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, कई बार आप एक स्पोर्ट्स में हैं, आपकी टीम जो है परफॉर्म कर रही है अच्छा, तो आप इमोशन में आ गए, आप यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड एंड एक्सिलरेटेड। तो उसकी वजह से क्या होगा, आप सभी को चीयर अप करेंगे, राइट? आपकी टीम हार रही है तो क्या होगा, आप सैड हो जाएंगे, आपको आपका बॉडी, आपका जो शोल्डर्स है वो ड्रूप हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे झुक जाएंगे आपके कंधे। तो ये सब इमोशंस का बहुत ज्यादा असर पड़ता है हमारी लाइफ में, राइट? आप कभी विराट कोहली को देखिए, जब टीम हार रही होती है तो विराट कोहली का इंप्रेशन, उसका बॉडी लैंग्वेज देखने वाला होता है, बिकॉज वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। कुछ प्लेयर्स होते हैं, आप अगर सॉकर मैच देखते हैं, वर्ल्ड कप का मैच होगा, आप जरूर देखिएगा, आपको जरूर ऐसे इंसिडेंसेस दिखेंगे जहां पर कोई टी शर्ट उतार के लहरा रहा है, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स मिलेंगे आपको जहां पर टीम के प्लेयर्स लेट के रो रहे हैं बिकॉज दे कुड नॉट जस्ट मेक द गोल। सो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो इमोशंस हर जगह पे होते हैं, इंडिविजुअल भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल फॉर्म्स द ग्रुप एंड द ग्रुप फॉर्म्स द ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। With increased emphasis on the human processes in organizations, emotions and feelings have gained considerable importance. So, क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस का कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहा है। पहले ऑर्गेनाइजेशंस में क्या था, छोटी सी कंपनी थी, कुछ लोग मिलके काम करते थे, और उसके बाद जो मालिक थे वो आपसे बात करते थे, दीपावली में बोनस दे देते थे, या कुछ इवेंट्स होते थे छुट्टी दे देते थे। बट अभी ऑर्गेनाइजेशन में राउंड द ईयर बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती हैं।
कस्टमर इंगेजमेंट प्रोग्राम चलते रहते हैं, सप्लायर इंगेजमेंट प्रोग्राम चलते रहते हैं, देन इन्वायरमेंट अवेयरनेस वीक चलता रहता है, देन सेफ्टी ड्राइव्स चलते रहते हैं कि आपको वर्कर्स को कैसे सेफ रखना है, उसके लिए आपको उनको, देन आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, उसके बाद आप किसी का परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं, किसी को प्रमोट करना है, किसी को निकालना है कंपनी से, किसी को पेंशन देना है, कोई वीआरएस लेने वाला है। सो ये सारी चीजें जो हैं ये साइड बाय साइड चलती रहती हैं, और उसकी वजह से इमोशंस को स्टडी करना ओपी में बहुत जरूरी हो गया है। सो जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज कॉग्निटिव, सेकंड वन इज फिजियोलॉजिकल एंड द थर्ड वन इज एक्सप्रेसिव। कॉग्निटिव, physiological and expressive. Let's understand what these components are. So when we talk about the cognitive component, it includes the conscious experience of emotions and the way we label our emotions. आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या हो रहा है इमोशन का? आप कभी किसी, आप बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल होंगे, आपको लगता होगा कि आज मैं भोलेनाथ के पास जाकर या आज मैं देवी माता के मंदिर में जाके आज उनसे बात करूंगा कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये क्या होता है, आप उनसे बात करते हैं, आपको एक फीलिंग होती है, आपको लगता है कि आप उनसे कनेक्ट हो गए, आप अपनी बातें उनसे रख पा रहे हैं, बप्पा के सामने आप अपनी बातों को रख पा रहे हैं। गणपति फेस्टिवल में जब आप जाएंगे मुंबई में लाल बाग के राजा के पास में, आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे डिवोटीज हैं जो उनके पास पैर पड़ के इस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं कि जैसे वो रियल में उनके सामने खड़े हैं और उनकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, राइट? क्योंकि उनको वो एक्सपीरियंस होता है, उनको वो फील होता है, उनको लगता है कि कोई सच में उनके सामने है, लोगों के आंसू निकल आते हैं, लोग बात करने लग जाते हैं उनसे। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड एज कॉग्निटिव कंपोनेंट्स, राइट? और हम अपने इमोशन को वैसा ही लेबल दे देते हैं, राइट? Then the second one is physiological component. So when you talk about the physiological component includes the emotional arousal. Emotional arousal का मतलब ये, different emotions have different kind of arousal. Fear and anger and sadness, they increase your heart rate. Anger raises your blood pressure. जब आप embarrassed feel करते हैं तो आप blush करने लग जाते हैं, right? किसी ने आपको बोला यार आज तो तू बहुत अच्छा लग रहा है, कोई किसी लड़की की किसी ने तारीफ कर दी क्लास में किसी लड़के ने, तो वो बिल्कुल ब्लश करने लग जाती है, एम्बैरेसमेंट। तो ये सारी चीजें जो होती है ये दीज आर कॉल्ड एज डिफरेंट डिफरेंट अराउजल्स, फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट। आप कभी कभी एक्साइटेड फील करते हैं, राइट? काफी एक्साइटमेंट में आपको लगता है कि ये मोमेंट को जी लेना है, तो आपका हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाता है। कभी आप गुस्से में भी आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट कई बार एक जैसे रहते हैं जिसको डिस्क्रिमिनेट करना, डिफरेंशिएट करना आसान नहीं होता। गुस्से में भी आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, एक्साइटमेंट में भी आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है। सपोज करिए लास्ट ओवर है, आप क्रिकेट के डाई हार्ड फैन हैं, इंडिया को 6 बॉल पे 20 रन बनाने हैं और सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है। अब आपकी हर बॉल पे धड़कन तेज हो जाएगी। कब तक तेज होगी? जब तक आपके मन को लगता है कि ये बॉल्स पे रन बनाए जा सकते हैं, और वो एक क्लाइमेक्स तक पहुंचेगी और उसके बाद या तो जीत होगी या हार होगी, राइट? सो दीज आर द फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट। और उसी तरीके का आपका एराउजल होता है, एकदम से आप सडन चिल्लाने लग जाते हैं अगर टीम जीत जाती है, अगर नहीं जीतती तो भी आप चिल्लाते हैं, आप टेबल पटकते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें हैं। देन एक्सप्रेसिव कंपोनेंट। एक्सप्रेसिव कंपोनेंट क्या होता है? इंक्लूड्स द बॉडी लैंग्वेज। आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस की वजह से। गेज, किसी की तरफ एक तरफ देखने लग जाते हैं, आपका गेस्चर वैसा हो जाता है, पॉस्चर वैसा हो जाता है, राइट? वॉकिंग करते समय आप फास्ट वॉक करने लग जाते हैं, राइट? या आप स्लो वॉक करने लग जाते हैं, या आप खोए खोए से रहते हैं, आप कहीं चल रहे हैं लेकिन देख कहीं और रहे हैं, राइट? इंटोनेशन मतलब पैरा लैंग्वेज का एक पार्ट है। इंटोनेशन मतलब आवाज में उतार चढ़ाव होना। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं फील करते तो कई बार आप कभी जोर से बोल देते हैं, कभी बिल्कुल स्लो हो जाते हैं। देन फेक्ड स्माइल। आप कभी प्लेन में ट्रैवल करिए, एयर होस्टेस मोस्टली दे हैव अ फेक स्माइल, क्योंकि वो आपकी रिलेटिव नहीं है, आपको जानती नहीं है, बट आपके सामने एक अच्छी प्लीजिंग पर्सनालिटी रखनी है, तो इसलिए दे हैव अ फेक स्माइल, राइट? जेन्युइन स्माइल कैसा होता है? आप जब लोगों को, जब सच में आप खुश होते हैं तो एक जेन्युइनली आप उनकी तरफ देख के हंसते हैं, सो दैट इज कॉल्ड अ जेन्युइन स्माइल। सो ये दीज आर द एक्सप्रेसिव कंपोनेंट्स ऑफ द इमोशंस, कॉग्निटिव, फिजियोलॉजिकल and expressive component. Until here, everyone has understood everything. Please let me know your feedback. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Now there are 3 related terms. जब हम emotions की बात करते हैं तो अभी हमने 3 components की बात की, अब हम बात करेंगे 3 related terms. जब emotions की बात होती है तो इनका नाम जरूर आता है. The first one is affect, second one is emotions and the third one is mood.
ये तीनों चीजें इंटर रिलेटेड है, काफी इंटर रिलेटेड है। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होती है। अफेक्ट क्या होता है? इट इज अ जेनरिक टर्म दैट कवर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ फीलिंग्स इंक्लूडिंग बोथ इमोशंस एंड मूड्स। ये क्या है? जेनरिक टर्म है जिसमें ब्रॉड रेंज ऑफ फीलिंग आती हैं किसी चीज को लेके। इमोशन भी आ जाते हैं आपके उसमें एंड मूड भी आ जाता है। आगे एक्सप्लेन करूंगा कैसे। इमोशंस क्या होते हैं? दीज आर द इंटेंस, discrete and short-lived feelings or experiences that are often caused by a specific event। आपके घर में किसी की शादी हो रही है, उस टाइम पे आप बहुत ज्यादा एक एक्साइटेड रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। शादी हो जाएगी, कुछ टाइम तक आप उसको याद रखेंगे, उसके बाद अगर 5 साल बाद आपको कोई बोले शादी हुई थी, तो वो एक्साइटमेंट, वो फीलिंग आपको नहीं रह जाएगी, वो इमोशंस नहीं रह जाएंगे जो एक्साइटमेंट आपको उस टाइम पे हुआ। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इमोशंस आर स्पेसिफिक एंड इंटेंस। Hyundai का भी एक ऐड आया था कुछ दिन पहले जो काफी वायरल हो गया। देखते देखते उस ऐड में दिखाया गया कि एक सोल्जर है, उसको ड्यूटी ज्वाइन करना है और वो जा रहा है, और वो जाते जाते उसको कोई गाड़ी नहीं मिलती। सभी सामने से एक जीप आती है, एक गाड़ी आती है Hyundai की। वो गाड़ी रुक जाती है, दैट वाज अ Hyundai व्हीकल। और वो रुकने के बाद वो उसको पूछता है आपको कहाँ जाना है, वो उसको छोड़ता है। छोड़ने के बाद वो उसको पता चलता है कि जो ड्राइवर है उसका इंटरव्यू था और वो उसको दूसरे डायरेक्शन में लेके जाता है जहां पर उसको जाना नहीं था। बाद में वो बोलता है कि जो लोग देश की ड्यूटी कर रहे हैं उनको हम प्रायोरिटी देते हैं। तो ये एक इमोशनल अटैचमेंट था, एक ऐसा इसने एक हाइप क्रिएट किया कि कंपनी की सेल जे कर्व में आ गई, जो डाउन हो रही थी कंपनी की सेल बिकॉज ऑफ कोविड। इसके बाद इस एड को देखने के बाद लोगों को एक पैट्रियोटिज्म की फीलिंग जागी और लोगों ने एकदम से उस कंपनी की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाया। लॉकडाउन के टाइम पे आप सभी को याद होगा, जब लॉकडाउन जस्ट स्टार्ट हुआ ही था, उस टाइम पर नरेंद्र मोदी जी ने एक अपील की थी ऑडियंस से, अपने व्यूवर्स से, अपनी देश की जनता से कि आप थाली बजाइए। कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने अपने घर की छतों पर जाके, भले ही चाहे उसका कोई रेशनल डिस्क्रिप्शन कुछ भी ना हो, लेकिन लोगों ने उस चीज को फॉलो किया। आप लोगों ने भी उसको शायद किया होगा। थाली बजाना, लाइट जलाना, ये सारी चीजें ऐसा लगने लगा कि उस दिन दिवाली है। और काफी टाइम तक उसका न्यूज में कवरेज भी था बिकॉज आप उस इमोशन में बह चले जा रहे थे, आप ये सोच नहीं रहे थे कि सही है कि गलत है। राइट। सो ये बहुत इंटेंस फीलिंग आपके अंदर में आ गई थी कि ऐसा होगा ही होगा, भले ही वो बाद में नहीं हुआ, लेकिन वो फीलिंग आती है। So these are the reaction to a particular event, whereas the moods are diffused and unfocused. Moods जो होते हैं वो unfocused रहते हैं। आपको अगर कोई बोलेगा यार क्या हो गया, मेरा मूड नहीं है, चला जा, दोस्त बोलता है कि चल ना यार तेरा मूड बना देता हूँ, तो इमीडिएटली फिर आप चल देते हैं। बट इमोशंस, अगर आप बहुत ज्यादा सैड हैं, बहुत ज्यादा आप अनहैप्पी हैं, तो आपको कोई हिलाएगा भी डुलाएगा भी तो आप जल्दी जल्दी उसकी बात को नहीं सुनेंगे। आप बहुत ज्यादा एंग्री हैं, आप इमीडिएटली आप बिल्कुल ठंडे नहीं हो सकते। वो बात अलग है कि आपका नेचर वैसा होगा। अदरवाइज अगर कोई बहुत ज्यादा एंग्री है तो उसको ठंडा होने में भी उतना टाइम लगेगा। राइट। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द मूड्स। मूड्स क्या होते हैं? मूड्स आर द फीलिंग्स दैट टेंड टू बी लॉन्गर लिव्ड। मूड्स ज्यादा टाइम तक रहते हैं बट अनफोकस्ड रहते हैं। मूड में आपको समझ में नहीं आता कि यार ये किस वजह से हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं उसकी वजह से आपका मूड खराब हो जाता है। बट इमोशंस में आपको पता है कि आप रो रहे हो तो किसकी वजह से रो रहे हो, हंस रहे हो तो किसकी वजह से रो रहे हो, हंस रहे हो। अगर आप खुश है तो आपकी खुशी के पीछे का रीजन क्या है। मूड में बेसिकली क्या होता है, ऑल्दो दीज आर लॉन्गर लिव्ड बट दीज आर लेस इंटेंस। आप खराब मूड में भी गाड़ी चलाते हो, राइट। आप खराब मूड में भी लोगों के घर पे जाते हो और डिनर करके चले आते हो, पता भी नहीं चलता लोगों को कि ऐसा भी है, आपके घर में झगड़े चल रहे हैं आपस में। राइट। सो दीज आर लेस इंटेंस दैट इमोशंस एंड लैक अ कंटेक्चुअल स्टिमुलस। यहाँ पे स्टिमुलस ऐसा कोई खास नहीं रहता, बट इमोशंस के केस में रहता है। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अभिषेक, Yes, sir. अमोल, Yes, sir. रोहित, सौरभ? यस सर। ओके ओके फाइन। others should also positively respond to me because मैं फिर मेरा मूड नहीं बनेगा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको, राइट। so let us now understand the affect, moods and emotions through this particular chart. Affect has been defined as a broad range of feeling that people experience. Affect can be experienced in the form of emotions and mood. So एक अफेक्ट जो होता है वो दो तरीके से एक्सपीरियंस किया जा सकता है, या तो इमोशन के फॉर्म में या मूड के फॉर्म में। इमोशंस कैसे आते हैं? एक स्पेसिफिक इवेंट की वजह से होते हैं। आप एग्जाम में पास हो गए, आपको बहुत खुशी हो रही है, दैट इज जस्ट बिकॉज यू पास्ड। आपका वो पता है कि इसकी वजह से हो रहा है, इंटेंस फीलिंग आती है। आप हाई स्कूल में पास हुए थे, उसके लिए आज आप मिठाई नहीं बांटोगे, क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट लिव था, वो इंटेंस था, शॉर्ट लिव था, वो खत्म हो गया। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था
वो जीतने के बाद अभी काफी टाइम हो गया, आज आप सड़कों पे निकलकर झंडा लेके इंडियन टीम के लिए तब तक चीयर्स नहीं करोगे जब तक इंडियन टीम दोबारा ऐसा कोई ना कोई काम ना कर दे, राइट? So very brief in duration, in seconds or minutes, probably lasting for hours. Then when we talk about emotion, these are specific and numerous in nature. Many specific emotions such as anger, fear, sadness, happiness, disgust or surprise, ये सारे examples हैं. Then usually accompanied by distinct facial expressions. आपका जैसा mood होता है वैसा ही आपका facial expression बन जाता है, right? Action oriented in nature. जब आपका emotion जैसा होगा उसी तरीके से आपका action होगा. जब आप बहुत sad हैं तो सैडनेस में आप क्या करते हैं, या तो दरवाजा बंद कर लेंगे, राइट, या आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप लोगों को अवॉइड करेंगे. आप बहुत ज्यादा एंग्री हैं तो क्या करेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामान तोड़फोड़ करते हैं. इंदौर में एक रेस्टोरेंट बनाया गया है जहां पर आप अपने डिप्रेशन को, अपने एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को निकाल सकते हैं. आप अंदर जाइए अपने बॉस की फोटो लेके और उसमें लगा दीजिए और उसको डांट से मारिए, उसको बैट से मारिए उस फोटो को, और वहां के रखे हुए सामान को तोड़िए फोड़िए. उसके लिए वो आपसे चार्ज करते हैं. वो सब पुराना सामान लाके रखा है उन्होंने, पुराने लैपटॉप, पुराने टीवी, पुराना रेफ्रिजरेटर, और अंदर आदमी जाता है पूरा पीपीई किट पहन के जाता है और तोड़फोड़ करता है. इससे उसका एंगर निकल पाता है, भड़ास निकल पाती है. सो ये भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि लोगों को पता है कि इमोशन अगर उसका अगर बैड है, वो किसी को लेके अगर बहुत ज्यादा मनी मन उसको आग बनी हुई है, तो उसका बेस्ट वे है कि उसको निकाल दो. तो कुछ लोग क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, कुछ लोग चीजें तोड़ने लग जाते हैं. तो उसको देखते हुए इंदौर में ये होटल चालू किया गया है. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल. अभी पुणे में एक रेस्टोरेंट था बिफोर लॉकडाउन. इट गॉट क्लोज्ड परमानेंटली because the commissioner and the police department did not give the permission to run such a restaurant. It was near FC Road. वहाँ पर क्या था, आप शाम को खाना खाने के लिए जा रहे हैं कपल्स या फैमिली, तो आपकी आंखों में एक पट्टी बांध देते थे, आपको वो फील कराते थे. अच्छी सी एक डिम म्यूजिक चल रही है, आपसे कोई बात नहीं करेगा, आपको वहाँ अंदर ले जाके बेसमेंट में अच्छी सी जगह पे एक नाइस एम्बियंस, खुशबू अच्छी है, बट आप देख नहीं पा रहे हैं. आपको खाना भी सर्व करना है खुद ही, नजदीक में वेटर खड़े रहेंगे, वो देखेंगे कि कहीं आप सामान गिरा ना दे, और आपको खाकर टेस्ट करके फील करना है कि है क्या, राइट? सो ये भी एक तरीके का इमोशन था कि एक्साइटमेंट में आप जा रहे हैं, बट वो बिकॉज ऑफ अनसेफ और सिक्योरिटी रीजंस उसको बाद में कंटिन्यूएशन नहीं मिला, राइट? नेक्स्ट इज मूड. सो द कॉज इज ऑफन जनरल एंड अनक्लियर. आपको समझ में नहीं आता कि आज मेरा मूड ऐसा क्यों हो गया. कई बार लोग क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कई बार नहीं. लास्ट लॉन्गर देन इमोशंस, आवर्स और डेज. कई बार कई घंटों तक रहता है, कई दिनों तक रहता है ये मूड. जैसे किसी फ्रेंड की डेथ के बाद दूसरा फ्रेंड अगर उससे बहुत क्लोज है तो कई दिनों तक वो शांत रहेगा, उसको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी, चाहे कितना ही अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा हो वो एंजॉय नहीं करेगा. सो मोर जनरल, टू मेन डायमेंशंस होते हैं इसमें, पॉजिटिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इफेक्ट. पॉजिटिव इफेक्ट में क्या होता है, आप पॉजिटिवली लेते हैं राइट चीज़ों को, आप जैसा मूड पॉजिटिव होगा आप चीज़ों में उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे. निगेटिव में आप भागने की कोशिश करेंगे, राइट? जनरली नॉट इंडिकेटेड बाय डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशंस. जब आपका मूड जो होता है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव हो, कई बार उसमें एक्सप्रेशन आपके नहीं दिखते, अंदर से पता नहीं चलता आपका मूड कैसा है, क्योंकि कई बार आप एक प्लास्टिक स्माइल दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ वेयर हॉस्टेस, वो प्लास्टिक स्माइल दे रही है, आपको तो लगेगा वो आपसे हंस रही है, बट अंदर ही अंदर हो सकता है कि वो घर में अपने पति से झगड़ा करके आई हो, राइट? जो मूड है कॉग्निटिव इन नेचर, इसको आप फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं जो भी चीजें आपके साथ लाइफ में हो रही हैं, और उसके हिसाब से आपका मूड बन जाता है, राइट? सो shall I go ahead now? Okay. So Yes, sir. the basic moods, positive and negative effect. As a first step towards studying the effect of moods and emotions in the workplace, we will classify the emotions into two categories: positive and negative emotions. Positive emotions क्या होते हैं? Such as joy and gratitude. Express a favorable इवैल्यूएशन और फीलिंग. जब पॉजिटिव होते हैं तो आपको एक फेवरेबल किसी का इवैल्यूएशन करते हैं, आप कहते हैं ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत अच्छा इंसान है, कंपनी बहुत अच्छी है, ये जगह बहुत अच्छी है. बट निगेटिव होता है तो आप उसी के बारे में बुराई करने लग जाते हैं, आपको वो चीजें पसंद नहीं आती. ये लीडर अच्छा नहीं है, इंसान अच्छा नहीं है, ये घर अच्छा नहीं है, ये जगह अच्छी नहीं है, टीवी अच्छा नहीं है, ये प्लेस अच्छी नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है, ये खाना अच्छा नहीं है. ये बिकॉज ऑफ द निगेटिव इमोशनल. कई बार बोला जाता है कि इमोशंस कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकते, कभी या तो वो पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे. अगर न्यूट्रल है इसका मतलब वो पर्सन नहीं है, वो नॉन इमोशनल है, वो उसके पत्थर है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, राइट? सो when we group emotions into positive and negative categories, they become mood states, because we are now looking at them more generally instead of isolating one or particular emotion. जब हम
जब हम ग्रुप करते हैं इमोशंस को पॉजिटिव और निगेटिव कैटेगरी में, तो उनको बोला जाता है मूड स्टेट, क्योंकि हम उनको आइसोलेट नहीं कर पाते इंडिविजुअली। सो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है उसका, निगेटिव इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव इफेक्ट होता है मूड डायमेंशन का, दैट कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक पॉजिटिव इमोशन सच एज एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म एंड इलेशन एट द हाई एंड, राइट? नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है? अ मूड डायमेंशन दैट कंसिस्ट ऑफ इमोशंस सच एज नर्वसनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी एट द हाई एंड। इसको एक्सप्लेन करूंगा इस चार्ट के थ्रू। पॉजिटिव और निगेटिव मूड क्या रहते हैं, देखिए यहां पर एक साइड में आपका हाईली नेगेटिव इफेक्ट है, दूसरे साइड में हाईली, अपोजिट साइड में हाईली लो नेगेटिव इफेक्ट है। राइट साइड में आप हाईली पॉजिटिव इफेक्ट, एंड देन उसके जस्ट अपोजिट डायगनली अपोजिट साइड में लो पॉजिटिव इफेक्ट। अब इसमें फीलिंग्स दिखाई गई। व्हेन यू लुक एट द हाईली पॉजिटिव इफेक्ट, you are alert, excited, elated, happy. When you look at the low negative effect, content, serene, relaxed, calm, right? When you look at the low positive effect, you have fatigue, bored, depressed, sad. When you look at the high negative effect, then nervous, stressed, upset. All these are the examples. So यहाँ पर आपकी जैसे जैसे मूड है उसके हिसाब से आपका फीलिंग्स और उसके हिसाब से आपका काम करने का तरीका होता है, राइट? कई बार ये चीजें क्लियरली विजिबल होती हैं, जैसे आप टेंस हो लेकिन आपके चेहरे से दिख नहीं रहा कि आप टेंस हो, राइट? आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट अगर देखें, आप गाड़ी चलाते वक्त बहुत ज्यादा अलर्ट रहते हैं, आपको लगता है कि कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, तो ये अलर्टनेस है, दिस शोज द पॉजिटिव इफेक्ट, राइट? लो नेगेटिव इफेक्ट क्या है? कुछ भी हो रहा है आपको क्या, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, रिलैक्स है। कहीं आग लग गई, आप कहेंगे लगने दो आग, जाने दो, मुझे कोई लेना देना नहीं, रिलैक्स है बिल्कुल। तो ये लो नेगेटिव इफेक्ट है। अगर आप देखेंगे पॉजिटिव, लो पॉजिटिव में तो कई बार लो, अगर आपको ज़्यादा पॉजिटिवनेस कहीं नहीं मिलता तो आप बोर हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, आपको लगता है कि यार ये जगह मेरे लायक नहीं है, यहाँ पे काम मेरे मतलब का नहीं है। स्किल्ड, आप बहुत अपने आप को स्किल्ड समझते हैं और जो काम आपको मिला जाता है आपको लगता है कि वो काम आपके लेवल का नहीं है। तो ये एक स्ट्रक्चर ऑफ मूड है जो मैंने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल, with the help of the examples. I hope the points have been clear to everyone. So I would like to close here and conclude my session. May I know your feedback, please? The feedback of today's session. You have understood everything? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you so much.